हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today we are starting the chapter which name is the temperate grasslands, that is the prairies. Most of the grasslands of the world are situated in the temperate zone. The grassland regions are mostly far away from the oceans. The clouds which form over the oceans often do not reach here, so trees do not grow here due to scarcity of rains. They are hotter in summer than other places at the same latitude and much colder in winter. Tall grass grows quickly when snow melts in the spring. Every continent except Antarctica has grasslands. The main features of all these grasslands are common in all the continents, but they are called the different names in different continents. Grasslands क्या होती हैं? जहाँ तक आपको दूर दूर तक सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखाई देती है. यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ नहीं होते हैं, ज़्यादातर क्या आपको दिखाई देगी? ग्रास दिखाई देगी. और टेम्परेट जोन में मोस्टली ग्रासलैंड्स ही लोकेटेड होती हैं. यहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते. लंबे लंबे ग्रास आप देखोगे ग्रासलैंड में. ओके. और हर एक कॉन्टिनेंट में, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक कॉन्टिनेंट में अपनी एक ग्रासलैंड होती है, जिसको अलग कॉन्टिनेंट में अलग नाम से जाना जाता है. जैसे दे आर कॉल्ड स्टेपीज इन एशिया, okay, prairies in North America and pampas in South America and velds in Africa and downs in Australia. We shall study the prairies as an example of temperate grasslands. और हम temperate grassland में किसका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं? prairies का, जो कि कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में. फाइन. नाउ लोकेशन. A vast stretch of gently sloping grasslands lie in the interior of North America. It stretches southwards from mid-Canada to mid-west of United States of America, that is USA. Canada से USA तक, यानी नॉर्थ अमेरिका के मिड में प्रेरीज लाई करते हैं. It is called the prairies, a French word which means a grassland. Prairies एक French word है जिसका मतलब होता है grassland. The area is a very long flat plain with no big trees in sight. This region falls in the cool parts of the temperate zone. It was once covered with thick grasses before farmers began to cultivate it. पहले जब शुरू में ये डिस्कवर की थी तो दूर दूर तक सिर्फ ग्रास ही ग्रास फैला हुआ था. उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया और फार्मिंग शुरू की, तो अब इतनी ग्रासलैंड्स वहाँ नहीं दिखाई देती है. उसके बजाय वहाँ क्या शुरू हो गई है? कल्टीवेशन. Two big rivers, the Mississippi and Missouri, flow through the prairies. यहाँ पर दो बड़ी रिवर्स हैं जिनके नाम है मिसिसिपी एंड द मिसूरी. ओके. And the main city in the area is Chicago, which is situated at the eastern edge of the prairies. और यहाँ की main city कौन सी है? Chicago. Now, climate of prairies. The prairies have a cool temperate climate. The winters are quite cold. It is colder than the northern plains of our country. विंटर्स इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन में सर्दी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा ठंड यहाँ पर विंटर्स में पड़ती है. स्नोफॉल होती है बेसिकली विंटर में. एंड द समर्स आर हॉट बट नॉट एज हॉट इन द इक्वेटोरियल रीजन. देयर इज मॉडरेट रेनफॉल यूजुअली इन द स्प्रिंग. तो द क्लाइमेट एंड सोइल आर सुटेबल फॉर ग्रासेस टू ग्रो. दे आर अनसुटेबल फॉर ट्रीज. इसीलिए ऐसा क्लाइमेट है यहाँ का कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है, ग्रासेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. एग्रीकल्चर. The farmers of the prairies have converted these grasslands into vast farmlands. Some such farm stretches for thousands of acres. यहाँ के जो farmers हैं उन्होंने grassland को किस में convert कर दिया है? farmlands में. ओके. क्योंकि crop क्या है? crop भी एक type of grass है. तो यहाँ पर हजारों एकड़ में यहाँ पर क्या की जाती है? farming की जाती है. And the land is very fertile. They grow wheat,
barley, rye, flax, oats, etc. Farmers here grow enough wheat not only for their own country but also for export to other countries as well. So Prairie's region is called the wheat basket of the world. बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोइल है, यहाँ पर क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं उगाते, सरप्लस यानी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी गेहूं को उगाते हैं। इसीलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। Farmers live in comfortable farmhouses in the middle of their land. A few farm laborers stay in homestead to assist them. फार्मर वहीं पर घर बनाकर बड़े बड़े फार्म हाउसेज में रहते हैं और उनके काम करने वाले जो हेल्पर होते हैं वहीं पर होमस्टेड बनाकर उनकी हेल्प के लिए वहीं पर रहते हैं। यहाँ पर बिग एंड स्मॉल शेड्स टू कीप फार्म मशीनरी एंड कैटल, वहाँ के लोग कैटल भी पालते हैं और बड़ी बड़ी मशीनरी को ढकने के लिए शेड्स बना रखे हैं। ऑल ऑपरेशंस जैसे प्लाइंग, सोइंग, रीपिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड पैकिंग, ये सारी चीज़ें मॉडर्न मशीन्स के द्वारा की जाती हैं। एंड दीज मशीन्स डू द वर्क ऑफ सेवरल हंड्रेड वर्कर्स इन अ फ्यू आवर। हजारों लोगों का काम यानी सैकड़ों लोगों का काम ये मशीन कुछ ही घंटों में कर देती है। The farmers need only a few people to help them. They drive around in cars and vans to the towns for purchase or sale. They also possess latest luxury items. और इतने रिच हैं यहाँ के लोग, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इनके पास कार हैं, वैन हैं, ट्रैक्टर्स हैं जिसमें ये सेल के लिए सामान को यानी अनाज को इधर से उधर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल रियरिंग। The western part of the prairies is hilly and soil is more shallow and coarse, so it is less fertile. जो western part है prairies का वो इतना ज़्यादा fertile नहीं है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, animal rearing करते हैं, क्योंकि यहाँ पर rain भी इतनी नहीं होती कि crop grow हो सके। So people क्या करते हैं, बड़े बड़े farm house उन्होंने बना रखे हैं, cattle house बना रखे हैं, जिनको क्या कहते हैं, ranches कहते हैं, जहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग के लिए यानी कैटल्स के चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी इन्होंने जगह छोड़ रखी है। अल्फाल्फा इज द मेजर ग्रास, बीफ इज स्टेपल फूड ऑफ अमेरिकन्स एंड इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर कौन सी ग्रास ग्रो होती है, अल्फाल्फा, और यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड क्या है, बीफ। ओके, जो दूसरे देशों में भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। The cattle are taken east by trains and Chicago is the main center where cattle are slaughtered by big machines. Next is cattle are also reared for milk and milk products. There are a big dairy farms having huge sheds. There are machines for milking, processing and storing of milk product. एक पार्ट तो हो गया एनिमल रियरिंग क्यों करते हैं, वो फ्लैश के लिए, क्योंकि बीफ वहाँ का क्या है, स्टेपल फूड है और दूसरे देशों में भी वो लोग क्या करते हैं, उसकी एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो एनिमल स्लॉटरिंग का सारा काम जो है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कुछ लोग जो है वो कैटल रियरिंग करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, उसकी बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स बना रखे हैं जिसमें सारा काम जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। As machines are used in agriculture and dairy farming on a large scale, very little manpower is needed. So most people go to cities and big towns where they work in factories and offices. See, इस तरीके से मशीन्स लगा रखे हैं जो काऊ का दूध निकालने के काम करती हैं और ज़्यादातर जो काम है वहाँ पर मशीनों द्वारा ही किया जाता है, तो बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं शहरों में या बड़े टाउन्स में या फैक्ट्रीज और ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। Now here is a classroom activity. Answer in one word. What does the word prairie means? प्रेरी वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है। प्रेरी का मतलब क्या है, ग्रासलैंड्स। ओके, तो इस तरीके से बाकी के आंसर आप खुद लिखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।